غازی یونیورسٹی کا طالبہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ متعلقہ پروفیسرز کا کیس بارے ویڈیو بیان۔ پروفیسر نے کہا کہ غازی یونیورسٹی پچھلے 9 ماہ سے بدنظمی کا شکار ہے۔ گزشتہ دنوں ہراسانی کے واقعے کو غلط رنگ دیا گیا۔ غازی یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی ایک اہم ترین یونیورسٹی ہے، لیکن پچھلے 9 ماہ سے یہ بد انتظامی کا شکار ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں مبینہ ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا، اس کو مس ہینڈل کیا گیا۔ وائس چانسلر صاحب نے اپنے لوز ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس کیس کو بہت زیادہ خراب کیا۔ اس سے یونیورسٹی کی جو توقیر میں بھی بڑی کمی آئی ہے۔ اس صورتحال میں ہم اساتذہ کرام، ہم تمام شعبہ جات کے جو چیئرمینز ہیں، ڈینز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس انتظامیہ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اسی لیے ہم نے آج احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آج بھی انہوں نے بہت سے اساتذہ کرام کو ایکسپلینیشن لیٹر بھی دیے، بلکہ مجھ سمیت بہت سے سینئر پروفیسرز کو انہوں نے سسپینشن کے آرڈر دیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو یونیورسٹی کو بھی خراب کر رہا ہے اور یونیورسٹی کی ساکھ کو بھی خراب کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم تمام اساتذہ کرام نے اپنے ذمہ داریوں سے مزید آگاہ کریں۔ غازی یونیورسٹی کے 19 پروفیسرز کا مستعفی ہونے کا معاملہ۔ ترجمان غازی یونیورسٹی کے مطابق کسی پروفیسر نے استعفیٰ جمع نہیں کرایا۔ چند پروفیسرز نے جنسی ہراسانی کیس میں ملوث پروفیسرز کو بچانے کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیے۔ یہ صرف یونیورسٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے جاری کیے گئے ہیں۔ جعلی پریس ریلیز کا مقصد یونیورسٹی کے انتظامیہ کی ساکھ کو خراب کرنا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور واقعے کی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی کمیٹی کا قیام۔ انکوائری کمیٹی حقائق سامنے لائے گی۔ رانا آصف سعید ایڈوکیٹ اور مہر حسیب قادر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور واقعے سے قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ کمیٹی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ ہائی کورٹ بار ملتان کو پیش کرے گی، جس کی روشنی میں واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ ایکسین محکمہ انہار بہاولپور حسیب جھنڈیر کہتے ہیں کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ کوشش کی ہے کہ سیلابی پانی سے انسانی، جانوروں اور فصلوں کو نقصان نہ ہو۔ دریائے ستلج میں بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا پانی شہریوں کے لیے رحمت بن گیا۔ بہاولپور میں پانی کی سطح بہتر ہونے سے آج سینک کا خاتمہ ہو گیا۔ دریائے ستلج کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے ایکسین محکمہ انہار بہاولپور حسیب جھنڈیر کا کہنا تھا کہ دریائے ستلج میں سیلابی پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ سر اب تو متواتر کمی آ رہی ہے۔ مزید جو نیکسٹ 48 آورز کے اندر مزید پانی کا لیول بہت نیچے چلا جائے گا اور وہ ایز سچ کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے۔ حسیب جھنڈیر نے کہا کہ ہیڈ اسلام اور میلسی ہیڈ سائفن پر پانی کی سطح چند دنوں میں مزید کم ہوگی۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح 8 فٹ سے بھی کم ہے۔ پانی انسانوں، جانوروں اور فصلوں کو نقصان نہ دے، اس کے لیے تمام اقدامات کیے۔ سر اس میں عرض کروں کہ یہ ایک نارمل فلو ہے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پانی بہاولپور کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ ایک ریچارج ہو جائے گا اور ایک بلیسنگ ہے جو بہاولپور کے لوگوں کے لیے، جو اس میں بہت زیادہ آرسینک اور بریکش پانی ہو رہا تھا۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ انہار نے بھارت کے پانی چھوڑنے کی پیشگی اطلاع پر پہلے سے بہتر انتظامات کیے، جس کی وجہ سے ضلع بہاولپور میں کسانوں اور شہریوں کا بہت کم نقصان ہوا۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر روحی، بہاولپور۔ مظفر گڑھ میں انجمن تاجران کا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ تاجروں نے جامع مسجد سے پریس کلب تک ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران جنوبی پنجاب شیخ عامر سلیم نے مظاہرے کی قیادت کی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بھیجا ٹیکسیز اور ہوش اربا مہنگائی کے خلاف تاجر سراپا احتجاج۔ مرکزی انجمن تاجران نے مظفر گڑھ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں تاجروں اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ انجمن تاجران جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری شیخ عامر سلیم، صدر انجمن تاجران سید امیر حسن نے مظاہرے کی قیادت کی۔ ہم احتجاج کرنے کا مقصد صرف ہمارا یہی ہے کہ ملک میں جو مہنگائی کی ایک لہر، کیا ایک طوفان چھایا ہوا ہے، ایک بم گرایا ہوا ہے، اس کے خلاف ہمارا احتجاج اور مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے۔ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیجئے کتنا مہنگا ہے، پٹرول کو دیکھ لیجئے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مہربانی فرما کر گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ یہ مہربانی کریں، پٹرول کی اور بجلی کے ریٹوں کو فوراً کم کریں۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران جنوبی پنجاب شیخ عامر سلیم نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں نے عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ عام آدمی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ حکمران آئے روز پیٹرول، ڈیزل، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
बहुत जुल्म हो रहा है ये हमारे ऊपर कि हम ताजरान रीढ़ की हड्डी का काम करते थे पाकिस्तान की, हमारी खुद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यकीन करें कि हम इतने परेशान हैं, बिल भरें, गैसों के बिल भरें, पेट्रोल के बिल भरें, बच्चों की फीसें भरें, हम तो निहायत ही परेशान कुन हाल हैं। खुदा हम पर रहम करें। मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क में आम आवाम को भी जीने का हक दिया जाए, हुकूमत आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे। अंजुमन ताजरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मराहत याफ्ता तबके की मराहत को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम की हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महंगाई ने ताजरों के हाथ भी खड़े करा दिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अलीपुर, जतोई और शुजाबाद के ताजी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। अलीपुर की ताजर बरादरी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गई। इकबाल चौक से फैसल चौक तक रैली निकाली। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख जहांगीर का कहना था कि महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। हुकूमत हंगामी बुनियादों पर महंगाई पर काबू पाए। जतोई के ताजरों ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। महंगाई ने आम तबके की कमर तोड़ कर रख दी। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। शुजाबाद में भी अंजुमन ताजरान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजर और शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। शहर सुल्तान के नवाही इलाके कलरवाली में सुई गैस मंसूबा 13 साल से इल्तवा का शिकार। गैस की पाइपलाइन होने के बावजूद शहरियों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिल सके। शहरी चूल्हा जलाने के लिए महंगे दामों एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शहर सुल्तान के इलाका कलरवाली में सुई गैस मंसूबा 13 साल से इल्तवा का शिकार। इलाके में गैस की पाइपलाइन डाल दी गई है, उसके बावजूद शहरियों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिल सके। शहरी खाना पकाने के लिए महंगे दामों एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसा है कि 13 साल कबल जो है सुई गैस हुक्काम ने यहाँ पर करोड़ रुपए के पैप जो है ज़मीन में दबा दिए थे, जो अभी तक गल सर रहे हैं। एक सियासतदान कहता है ये हमारा मनसूबा है, हम लाए हैं, जबकि दूसरा कहता है ये हमारी काविशों से यहाँ आया है। मगर शहरियों को किसी का ख्याल नहीं है। शहरी आज भी जो है मिट्टी के चूल्हे झोंक रहे हैं और आज भी एलपीजी जो महंगी गैस है उसको इस्तेमाल करके अपनी जमा पूंजी लुटा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। 13 साल से सुई गैस की पाइपलाइन मौजूद है, उसके बावजूद हमें लकड़ी और महंगी एलपीजी खरीद कर खाना पकाना पड़ता है। इसका कोई भी केस बात है चालू नहीं, वो कहते हैं भी चालू हो जाएगा, लेकिन हम 3 बंदे हैं यहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं। जो हमारी तनख्वाह है वो हमको माहाना मिल जाती है। आगे का हम जो भी अफसर हैं उससे पूछते हैं भी कब चालू है, वो कहते हैं हमें पता नहीं कब चालू करते हैं। ये सुई गैस इंतजामिया के इस हवाले से कहना है कि फंड्स ना होने की वजह से पाइपलाइन नामुकम्मल है, जल्द काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ शहरियों ने कलरवाली में गैस कनेक्शन जल्द चालू करने की अपील की है। कैमरामैन मजीब शामी के साथ अली हसन, रोही, शहर सुल्तान। हासिलपुर में तहसील इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी। पुराना हासिलपुर के आवाम तफरीही पार्क और स्टेडियम की सहूलत से महरूम। नौजवान अपनी मदद आप के तहत किराए की जगह लेकर हॉकी खेलने पर मजबूर हैं। हासिलपुर में तहसील इंतजामिया शहरियों को सहूलियात की फराहमी में नाकाम। पुराना हासिलपुर के आवाम स्टेडियम और तफरीही पार्क की सहूलत से महरूम। शहर में मस्बत सरगर्मियों के लिए जगह मयसर नहीं। इस वजह से नौजवान नस्ल का मनफी सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ने का खदशा है। नौजवान अपनी मदद आपके तहत किराए की जगह पर हॉकी का खेल जारी रखे हुए हैं। मैं सर 2010 से तकरीबन गेम कर रहा हूँ यहाँ पे। हमें आज तक ग्राउंड में असर नहीं हुआ। ठीक है, हम आते हैं मेंटली फ्रेशमेंट के लिए, जो कि फिजिकली हमारे पास ग्राउंड मौजूद ही नहीं है, जिससे हम ये रेंट का ग्राउंड है हमारे पास। ठीक है, जहाँ से हम गेम करते तकरीबन 1-1.5 मंथ, उसके बाद ये खाली करवा लिया जाता है। हमारी गेम जो मुतासर होती है, जिसकी वजह से ये जो ग्राउंड है ना, ये हमने रेंट पे लिया हुआ है। सरकारी सतह पर हमारे पास कोई भी ग्राउंड या कोई भी वसाइल नहीं है खेलने के लिए, और ना ही कोई बुनियादी ज़रूरियात है। ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से हमारी अपील है कि हमें वसाइल फराहम किए जाएँ ताकि हमारी गेम और हमारा फ्यूचर बेहतर हो। हमारे यहाँ पे हॉकी खेली जाती है। हमारे यहाँ पे कोई अपना प्रॉपर तरह की कोई ग्राउंड नहीं है। कभी हम इस ग्राउंड में खेल लेते हैं, कभी कहीं और खेल लेते हैं। ना हमारे यहाँ पे कोई पार्क है, हमें कोई प्रॉपर जगह चाहिए यहाँ पे खेलने के लिए। हमारे पास ना कोई ग्राउंड है और ना कोई वसाइल हैं। तकरीबन ये हमारे पास यहाँ MP अब्दुल गिल साहब हैं, मियां रास हैं, पीरजादा साहब हैं, यहाँ ये स्पोर्ट के ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने अब तक ना कोई कोशिश की है कोई इधर कोई खेलों का ग्राउंड बन जाए। हम हॉकी के हमारे पास 25-30 खिलाड़ी हैं और हमारे पास ग्राउंड नहीं है। खिलाड़ियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि तफरीही पार्क और स्टेडियम की सहूलियात मुहैया की जाए ताकि नौजवान नस्ल अपनी मस्बत सरगर्मियां जारी रख सके। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज, हासिलपुर।
हुकूमत पंजाब की तरफ से कायम सहूलत बाजार किसानों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। खाद माफिया मुतहरिक यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी। किसान खाद के महंगे दामों फरोख्त पर सरापा एहतजाज। जहानिया में सहूलत बाजार किसानों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। किसान सहूलत बाजार में न खाद है न ही बीज दस्तयाब है। यहाँ चंद एक जरिए अद्वियात के अलावा किसानों को कोई सहूलियात मैसर नहीं। दूसरी तरफ खाद माफिया मुतहरक हो चुका है। यूरिया खाद का सरकारी रेट 3,212 रुपए मुकर्रर है, जबकि डीलर्स यूरिया खाद 3,800 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। किसान खाद माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रोही न्यूज से गुफ्तगू में किसानों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खाद का रेट इस वक्त 3800 में ब्लैक में, मेरे डीलर हजरात हमें खाद नहीं दे रहे। इसका रेट 3212 रुपए और हमें ब्लैक में 3800 रुपए में दे रहे हैं। उस 3800 रुपए में 1-2 बैवरी देते हैं और ज्यादा हमें चाहिए, हमें खाद नहीं मिल रही। हम दर बदर पर धक्के खा रहे हैं और डीलर हजरात ने कहा कि हमारे पास खाद नहीं है। किसानों का कहना था कि इनसे कपास 8,500 रुपए की बजाय 7,400 रुपए फी मन खरीदी जा रही है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत से इस बारे नोटिस लेने का मुतालबा किया है। किसानों को इस वक्त कपास, धान और मकई के लिए खाद की अशद ज़रूरत है। हुकूमत इन्हें सरकारी रेट पर यूरिया खाद मुहैया करने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। और यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई को एक और बड़ा झटका। जामपुर से दरेश ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा हाफिज नूर मोहम्मद और कमाल कुरैशी साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। कमाल कुरैशी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी के एहसास में शाया साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब सरदार शेर अली खान, सरदार परवेज इकबाल खान और दिगर भी एशाइये में शरीक। इस मौका पर सरदार अवैस लगारी का कहना था कि शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुल्क मुश्किल हालात से निकल आया है। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई को एक और बड़ा झटका लगा है। जामपुर से दरेश ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा हाफिज नूर मोहम्मद और कमाल कुरैशी साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। कमाल कुरैशी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी के एजाज में इशाया दिया गया। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब सरदार शेर अली खान, सरदार परवेज इकबाल खान और दिगर भी इशाइये में शरीक हुए। इस मौका पर सरदार अवैस लगारी का कहना था कि शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुल्क मुश्किल हालात से निकला है। आगे बढ़ते हुए बात करें, यौम आज़ादी की आमद में सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। शहर शहर, गलियां और बाजार सजाए जाने लगे हैं। मुल्तान में जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई है। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी की आमद में सिर्फ 4 रोज बाकी। मुल्तान शहर की मार्केटों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कोई झंडा तो कोई अपनी पसंद के बैजेस खरीदने में मसरूफ। शहरियों का कहना था कि यौम आज़ादी पर घरों पर परचम लहराएंगे, इसलिए यहाँ परचम खरीदने आए हुए हैं। 14 अगस्त आपको पता है आने वाला है, उसी सिलसिले में हम झंडा लेने आया हूँ। वैसे तो क्योंकि आपको पता है परचम के बगैर तो हमारी पहचान नहीं है ना। फिर अभी तो झंडियाँ खरीदने आए हैं और घर को सजाएंगे ताकि पता चले कि जश्न आज़ादी है क्या। स्टॉल्स पर खरीदारी के लिए आए शहरियों का मानना था कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया है, हमें इसका ख्याल भी उसी लगन और मेहनत से रखना चाहिए। जैसे ही अगस्त शुरू होता है हम खरीदारी में शुरू हो जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खरीदारी करते हैं और बहुत ही जोश खरोश से ये दिन हम मनाते हैं। ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शहरी मार्केट से झंडे, झंडियां, बैजेस, ग्रीन शर्ट्स और आराइश की दीगर अशिया खरीद रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। नवाबों के शहर में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बाजारों में मिले नगमों की गूंज है। बच्चों और बड़ों का जज्बा दीदनी है। यौम आज़ादी करीब आते ही बहावलपुर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। मिली नगमों में कौमी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया जाने लगा। बच्चे और बड़े आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं और मुख्तलिफ सजावटी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त पर कौमी यकजहती की खातिर सारे गम भुला देते हैं। 14 अगस्त की जनाब हमें तो बहुत खुशी है। ये हमारे बड़ों ने इसके लिए जान का नजराना कुर्बान करा है और हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर हमारे बच्चे हैं वो भी बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। और हम इंडिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत खुशहाल है, हम खुशहाली की तरफ है। हम सारे दुखों को भूल जाते हैं इस दिन और सब अपनी खुशी के अंदर शरीक करते हैं और हम इस दिन को जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। शहरी कहते हैं हर पाकिस्तानी का जोशो जज्बा दीदनी है। लोग रंग बिरंगी झंडियां, बैज, चूड़ियां, कैप और कौमी परचम में रंगी शर्ट खरीद रहे हैं। बच्चे कहते हैं रोज रोज 14 अगस्त नहीं आता, इसलिए बाजा तो बजेगा। 14 अगस्त का दिन रोज रोज थोड़ी आता है, ये आता है एक दिन है, इसलिए हम बाजे बजाते हैं। लोग डिस्टर्ब होते हैं, होने दो,
हमारा खुशी का दिन है, एक दिन ही आता है, अब हम खुशी करेंगे। हमने फूल की टिकी हुई है, हमने झंडियाँ, झंडे, ये वो सब कुछ, हमने अपने कपड़े भी ये वो सब कुछ ले लिए हैं। ठीक है। हर पाकिस्तानी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कोई घरों को बरकी कमकमों से सजा रहा है तो कोई मिली नगमों में अपने हीरोज को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पेप्को हाइड्रो यूनियन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। चांद ग्रुप का क्लीन स्वीप फूल ग्रुप कोई नशिस्त न जीत सका। चांद ग्रुप ने मोहम्मद इलियास जोनल वाइस चेयरमैन और मलिक तनवीर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिए गए हैं। चेयरमैन और जोनल जनरल सेक्रेटरी की सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए। हाइड्रो यूनियन के फूल और चांद ग्रुप मध्य मुकाबल थे। चांद ग्रुप के मोहम्मद इलियास 79 वोट लेकर वाइस चेयरमैन मुंतखब, जबकि फूल ग्रुप के उम्मीदवार राना खिजर 41 वोट हासिल कर सके। नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास का कहना था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए दिन रात एक कर देंगे। के लिए तो पहले भी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करते हैं। अब जोन में आए हैं तो हम राशिद भाई के साथ मिलकर, अपने जोनल चेयरमैन के साथ मिलकर, चौधरी खालिद की क़यादत में फरहान शबीर साहब हमारे जो कमांडर हैं उनके साथ मिलकर तमाम लेबर के मसाइल भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे और जो भी किसी का कोई मसला मसाइल है उसको भरपूर तरीके से हल करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को सही ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। कोई अगर कहीं कोई मामला आता भी है कि उसमें हमारा कहीं किसी का कोई कसूर नहीं है। टैरिफ बहुत ज़्यादा महंगा है। मीटर शॉर्टेज के होने के बावजूद भी अपनी पूरी कोशिश के साथ बहुत हद तक कंज्यूमरों को मीटर लेके दिए हैं। कंपनी में 60 जरूर मीटर हैं। हाइड्रो यूनियन चांद ग्रुप के ही मलिक तनवीर 85 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि फूल ग्रुप के जुबैर मंजूर 35 वोट हासिल कर सके। ऐसी मुल्तान सर्कल फरहान शबीर ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि कोई भी यूनियन किसी भी अदारे की रीढ़ की हड्डी होती है, हम मिलकर काम करेंगे। हमारा कोई भी महकमे का कोई भी काम हम सर अंजाम नहीं दे सकते। ये हमारे महकमे की रीढ़ की हड्डी हैं और इनकी वेलफेयर और इनकी बहबूद के लिए जो कुछ हो सका वो हम इंशाल्लाह करेंगे। इस मौके पर फातेह उम्मीदवारों के हामियों ने जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। 9 मुंतखब ओहदेदारान को फूल पहनाकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। इस रिपोर्ट के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहें और देखते रहे रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।